خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں پشاور میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کشمیری عوام سے زار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی قیادت گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کی ہے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ یوم استحصال کشمیر کشمیری عوام کے ساتھ زار یکجہتی اور ان کے حق خود ارادیت کی حمایت کے عزم کی تجدید کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت میں پوری امت مسلمہ متحد ہے، جبکہ پاکستانی قوم کشمیر کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن، استحکام، ذمہ دارانہ سفارتکاری کے فروغ کے لیے مثبت کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن ریاست ہے اور عالمی برادری اس کی تعمیری کردار کو تسلیم کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر پاکستانی شہری اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور قومی سلامتی، امن اور ملکی مفاد کے معاملات پر پوری قوم متحد ہے۔ رخ کریں گے فیصل آباد کا، جہاں پر سی سی ڈی صدر ڈویژن کے مبینہ پولیس مقابلے میں بین الاسلحہ ریکارڈ یافتہ اشتہاری ملزم ناصر عرف ناصری ہلاک ہو گیا ہے۔ سی سی ڈی حکام کے مطابق ملزم ناصر عرف ناصری پنجاب میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا اور وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ملزم 60 سے زائد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھا اور کار چوری، ڈکیتی، رازنی اور بھتہ خوری سمیت سنگین جرائم میں ملوث رہا۔ سی سی ڈی کے مطابق ملزم ناصر سمندری، کامون کی، لاہور اور گجرانوالہ پولیس کو مطلوب تھا۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پاکستان پوسٹ حیدرآباد جی پی او کے زیر اہتمام کشمیری عوام سے زار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ریلی کی قیادت چیف پوسٹ ماسٹر عقیل احمد انصاری نے کی ہے، جو جی پی او حیدرآباد سے روانہ ہو کر حیدرآباد پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی ہے۔ ریلی میں شریک افراد نے کشمیر سے زار یکجہتی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کے خلاف نعرے بازی کی ہے اور کشمیری عوام کے ساتھ حمایت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کشمیری شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی ہے۔ پریس کلب کے باہر خطاب کرتے ہوئے چیف پوسٹ ماسٹر عقیل احمد انصاری نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر سے متعلق مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے لیے کردار ادا کیا جائے۔ تقریب میں مقررین نے 5 اگست 2019 کے اقدامات سے متعلق پاکستان کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ خبر شامل کریں گے قصور سے، جہاں پر یوم شہداء پولیس کے موقع پر ڈی پی اے ایس آڈیٹوریم میں مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب میں صوبائی وزیر قانون رانا اقبال خان، اراکین صوبائی اسمبلی چودھری الیاس گجر، چودھری احسن رضا خان، حاجی نعیم صفدر انصاری، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے ریونیو سعد وسیم شیخ، رکن قومی اسمبلی رانا حیات خان اور ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ تقریب کے دوران ضلع قصور کے 34 پولیس شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جبکہ شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ مقررین نے شہداء پولیس کی قربانی کو قوم کا سرمایہ قرار دیتے ہوئے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف خانپور میں بھی تحصیل انتظامیہ کی زیر اہتمام یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی ہے، جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر خانپور افضل سکھیرا نے کی ہے۔ ریلی میں سیاسی، سماجی، ثقافتی، وکلاء، طلباء، ریسکیو اور شہریوں کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی ہے۔ شرکاء نے کشمیر کے حق اور بھارتی مظالم کے خلاف کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ مزید جانتے ہیں سلیم مغل سے، جو اس وقت ریلی کے ہمراہی موجود ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، دنیا بھر کی طرح ضلع شکارپور کی تحصیل خانپور میں بھی یوم استحصال کشمیر آج بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول خانپور کی جانب سے شاگردوں استادوں کی طرف سے ایک ریلی نکالی گئی ہے، جس میں اسسٹنٹ کمشنر خانپور نزاکت ڈانی نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے۔ سر سے جانیں گے، سر بتائیے گا آج کے دن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی، آج کا دن ہمارا 5 اگست یوم استحصال، اس کے منانے کا مقصد یہ تھا 2019 میں جب انڈیا نے جموں اینڈ کشمیر کی اسپیشل اسٹیٹس ختم کی، تو اس کے بعد جو ظلم و جبر کشمیر کے عوام نے برداشت کیے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کو ان لوگوں نے درپدر کیا ہے اور وہاں بے گناہ لوگوں کو مارا ہے اور ظلم کیا ہے۔ کافی جو ہمارے وہاں پہ مجاہدین تھے یا جو کشمیری عوام تھی، ان لوگوں کو ان لوگوں بے گناہ جیلوں میں ڈالا ہے۔ آج بھی وہ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ مقصد تھا کہ ہم جو ہے نا اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ بتا دیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، پاکستان، پاک فوج اور پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہے۔
बड़ी मेहरबानी जी। आपने असिस्टेंट कमिश्नर की बातें सुनी। इनका कहना है कि भारत अपनी हठधर्मी से बाज आए वरना पाक फौज उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और यहाँ पर रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के मुसलसल नारे लगाए जा रहे हैं जी। तफसीलात के लिए शुक्रिया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने अलहमरा हॉल में यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगस्त का महीना पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। तकरीब में कश्मीरी रहनुमाओं इंजीनियर मुश्ताक, महमूद अहमद सागर और साहिद मुश्तबा समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। बिलाल यासीन ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की। लाखों कश्मीरियों की शहादत को किसी सूरत फरामोश नहीं किया जाएगा, जबकि कश्मीरी बच्चों, जवानों, खवातीन और बुजुर्गों की कुर्बानियां राय का नहीं जाएंगे। सूबाई वज़ीर ने कहा कि ये बात अटल है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और कश्मीरी अवाम को हक खुद इरादियत मिलना चाहिए। पाक भारत तनाज़ात के तवील फहरिस्त मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला आज भी सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को मसला कश्मीर की तारीखी और कानूनी हैसियत से आगाह करना वक्त की अहम जरूरत है। तकरीब से खिताब करते हुए कश्मीरी रहनुमाओं ने कहा कि भारत रोज़े अव्वल से कश्मीरियों के पाकिस्तान के साथ रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश कर रहा है। ताहम कश्मीरियों के दिल आज भी पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत में ना पहले कमी आई है और ना अब आएगी। तकरीब के अख्ताम पर सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन, कश्मीरी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने अलामती वॉक में शिरकत की और कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया। कंदकोट में यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया है। रैली डिप्टी कमिश्नर आगा शेर जमान की क़यादत में DC ऑफिस से घंटा घर चौक तक निकाली गई है। इसमें मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, शहरियों, सहाफ़ी और समाजी नुमाइंदों ने शिरकत की है। रैली के शुरा ने कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर से मुतालिक नारे लगाए हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आगा शेर जमान ने कहा कि कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रहेगी। मुकर्रिरीन ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया गया, जबकि रैली के शुरा ने कश्मीरी शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए दुआएं की हैं। रैली पुरअमन माहौल में ख़िताम पजीर हुई, जहाँ शुरा ने कौमी यकजहती और कश्मीर से मुतालिक हिमायत के आज़म का अयादा किया है। पाकपतन का मोहल्ला फरीदाबाद आज के जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। वापडा की लटकती तारें किसी बड़े हादसे को दावत दे रही हैं। मज़ीद तफसीलात जाने के अहमद शाह से। बताइए अहमद शाह। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मोहल्ला फरीदाबाद गली नंबर 3 में मौजूद हूँ, जिसकी अब तक सूरत हाल है। यहाँ पर जो है वापडा की लटकती जो तारें हैं वो किसी बड़े हादसे को दावत दे रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक मुकीम मौजूद है, उनसे पूछते हैं आपको किन मुश्किलात का सामना है। जी भाईजान, जब इस जगह पर बारिश आ जाती है ना, तो इस जगह पर घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इतना पानी आ जाता है कि बच्चे भी घर से तंग हो जाते हैं, कोई चीज़ लेनी हो वो भी नहीं मिलती है, इतने तंग हो जाते हैं। और बाहर गली में निकलते हैं तो तारें इतनी ज़्यादा हैं कि बच्चे तंग हो जाते हैं कि हम भी डरते हैं कि कोई बच्चा तारों के साथ ना लग जाए। इस जगह पर इतनी तंगी है कि अल्लाह बेहतर जानता है ये लोग कैसे हम रह रहे हैं इस जगह पर। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि यहाँ पर जो है वापडा की जानिब से जो है ये तारें हैं उनको ठीक नहीं किया जा रहा, ना तो कोई ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पर तवज्जो दे रही है और ना ही वापडा। उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस पर नोटिस लिया जाए और यहाँ पर जो है खंबे लगाए जाएँ और इन तारों का जो इंतज़ाम किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए जानिए मीरपुर माथिलो में यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर ज़िला इंतजामिया घोटकी के ज़ेर एहतमाम यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया है। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से निकाली गई है, जिसकी क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू घोटकी 1 बशारत हुसैन मोहटो ने की है। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर्स, महकमा तालीम, रेस्क्यू 1122, महकमा बल्दियात, दीगर सरकारी महकमों के अफसरान और मुलाजमीन समेत स्कूल तलबा ने शिरकत की है। शुरा ने हाथों में कौमी परचम उठा रखे थे और कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए नारेबाजी की गई है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक रैली का मकसद कश्मीरी अवाम से यकजहती और उनके साथ हिमायत का इजहार करना था। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बशारत हुसैन मोहटो ने कहा कि 2019 में भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के इक़दाम पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो मसला कश्मीर के हल और कश्मीरी अवाम से मुतालिक इक़दामात के लिए अपना किरदार अदा करें।
यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मीरपुर खास में भी कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया मीरपुर खास की जानिब से कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें डिविजनल कमिश्नर शहीद शमहीर भुट्टो, DIG पुलिस फैसल अब्दुल्ला चाचड़, डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर हुसैन लकारी, मेयर अब्दुल रऊफ गौरी, SSP सैयद फिदा हुसैन शाह समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की है। तकरीब के दौरान डिविजनल कमिश्नर शमहीर भुट्टो ने दीगर अफसरान के हमरा परचम कुशाई की, जबकि पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की। इस मौके पर कश्मीर आवाम से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। बादशाह डिप्टी कमिश्नर, मेयर और SSP की क़यादत में कमिश्नर कॉम्प्लेक्स से मीरपुर खास प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जिसमें शिरका ने कश्मीर से इज़हार यकजहती का इज़हार किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि रैली का मकसद कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का पैगाम दुनिया तक पहुँचाना है, जबकि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखने के मौक़िफ़ का अदा करता है। और मुल्क भर की तरह जिला शिकारपुर की तहसील खानपुर में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल खानपुर की जानिब से एक पुरजोश रैली का इनेकाद किया गया है। रैली का मकसद कश्मीरी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करना और भारत के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आकिब हुसैन आराई से। जी आकिब, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह ज़िला शिकारपुर की तहसील खानपुर में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त भी गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल खानपुर की जानिब से शागिर्दों उस्तादों की तरफ से एक रैली निकाली गई है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर नज़ाकत डार ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। सर से जानेंगे, सर बताइएगा आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहिए? जी, आज का दिन हमारा 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल, इसके मनाने का मकसद ये था 2019 में जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल स्टेटस ख़त्म की, तो उसके बाद जो जुल्म व जबर कश्मीर के अवाम ने बर्दाश्त किए हैं, हमारी माँओं बहनों को इन लोगों ने दरपदर किया है और वहाँ बेगुनाह लोगों को मारा है और जुल्म किया है। काफ़ी जो हमारे वहाँ पे मुजाहिदीन थे या जो कश्मीरी अवाम थी, उन लोगों को इन लोग बेगुनाह जेलों में डाला है। आज भी वो जुल्म कर रहे हैं। तो ये मकसद था कि हम जो है ना अपने कश्मीरी भाइयों को ये बता दें कि वो अकेले नहीं हैं, पाकिस्तान, पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है। बड़ी मेहरबानी। जी, आपने असिस्टेंट कमिश्नर की बातें सुनी। उनका कहना है कि भारत अपनी हठधर्मी से बाज आए, वरना पाक फ़ौज उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और यहाँ पर रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के मुसलसल नारे लगाए जा रहे हैं। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। सजावल में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया है। रैली DC ऑफिस से DC हाउस तक निकाली गई, जिसकी क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 शाहिद नसीर लोन ने की। रैली में सरकारी मुलाजमीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि शिरका ने कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए नारे लगाए। इस मौके पर शिरका ने कश्मीर से मुतालिक यकजहती के पैगाम का इज़हार किया और यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। पाकपतन में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें इंतजामी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उमर सरवर ने की। शिरका ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम उठाए रखे थे, कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए नारे लगाए। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर बख्तियार कार चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें सियासी और समाजी शख्सियात, तलबा और सिदरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स ने भी शिरकत की है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएंगे, जैकबाबाद में 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शहजाद अहमद शाही की क़यादत में रैली DC ऑफिस से कश्ती चौक तक निकाली गई, जिसमें जिला इंतजामिया के अफसरान, मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन, असातिज़ा, स्कूल और कॉलेज के तलबा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। रैली के शिरका ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम, जबकि मुख्तलिफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शिरका ने कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए नारेबाजी की। कश्ती चौक पहुंचने पर रैली जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई, जहां डिप्टी कमिश्नर शहजाद अहमद शाही समेत दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ का अदा करता है और आलमी बरादरी से मसले कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा करता है।
मंडी बहाउद्दीन में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने ज़िला काउंसिल हॉल में पाकिस्तानी और कश्मीरी परचमों की परचम कुशाई की है। सायरन बजाया गया और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई है। कश्मीरी अवाम से ज़ाहिर यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई है, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने की है। रैली में ज़िले अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली ज़िला काउंसिल हॉल से शुरू होकर मेन फालिया रोड पर ख़िताम पजीर हुई है। शुरका ने कश्मीरी अवाम के हक़ में नारे लगाए और मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। मातली में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। वेन्यू की जानिब से निकाली गई रैली की क़यादत कमिश्नर मातली डॉक्टर राशिद अली चन्ना और मुख्तियार कार मातली मोहसिब जुनेजो ने की है, जबकि म्यूनसिपल कमेटी मातली की रैली की क़यादत चीफ ऑफिसर अतीक कायम खानी ने की। रैली में सरकारी अफसरान, मुलाजमीन और शहरियों ने शिरकत की, जबकि शुरका ने कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए नारेबाजी की है। इस मौके पर शहर कश्मीर से मुताल्लिक नारों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। असिस्टेंट कमिश्नर मातली डॉक्टर राशिद अली चन्ना ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादत की हिमायत जारी रखेगा। मुख्तियार कार मातली मोहसिब जुनेजो ने कहा कि कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, जबकि चीफ ऑफिसर अतीक कायम खानी ने मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इक़दाम पर जोर दिया। सक्खर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कश्मीरी अवाम से ज़ाहिर यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया है। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर सक्खर नादिर शहजाद खान ने की है। इसमें सिंध रेंजर्स, पुलिस, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, उलमा, शहरी असातिज़ा और तलबा ने भरपूर शिरकत की है। रैली म्यूनसिपल स्टेडियम से शुरू होकर सक्खर प्रेस क्लब पर ख़िताम पजीर हुई है, जहाँ शुरका ने कश्मीरी अवाम से ज़ाहिर यकजहती किया है। शुरका ने बैनर्स और प्लेक कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरी अवाम के हक़ में और कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अक्कासी करने वाले नारे दर्ज थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सक्खर नादिर शहजाद खान ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादत के हवाले से अपने मौक़िफ़ का अयादा करता है और उनकी सियासी, सिफारती और इख़लाक़ी हिमायत जारी रखेगा। और अब रुख करेंगे सज्जावल का, जहां पर सिविल अस्पताल सज्जावल से आगाही रैली निकाली गई। आगाही रैली की क़यादत मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिविल अस्पताल सज्जावल डॉक्टर अनवर मेमन ने की, जिसमें महकमा सेहत, यूनिसेफ के नुमाइंदगान, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, लेडी हेल्थ वर्कर्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। रैली का मकसद माँ के दूध की अहमियत, बच्चों की बेहतर नशोनुमा और सेहतमंद मुआशरे के क़याम के हवाले से अवाम में शऊर उजागर करना था। इस मौके पर डॉक्टर अनवर मेमन ने कहा कि इब्तदाई 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध बच्चे के लिए मुकम्मल और बेहतरीन ग़िज़ा है, जो बच्चों को ग़िज़ाई क़िल्लत, नमूनिया और दीगर बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि नौमौलूद बच्चों को माँ का दूध पिलाने को यकीनी बनाएं और इस हवाले से जारी आगाही मुहिम में भरपूर ताउन करें। रैली के शुरका ने माँ के दूध के फ़रोग़ और सेहतमंद नस्ल की तश्कील के लिए शऊर उजागर करने के आज़म का इज़हार किया। कंदकोट से खबर शामिल करें, जहां जूनियर साइंस टीचर के उम्मीदवारों ने ऑफर ऑर्डर्स जारी न होने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्लेक कार्ड्स उठा रखे थे और मुतालबात के हक़ में शदीद नारेबाजी की गई है। एहतजाज की क़यादत गुलाम मुर्तज़ा सब्ज़ोई, खादिम हुसैन बंगवार, महराज अहमद खोसो, रजब अली लाशारी और दीगर ने। मुजाहिरीन का कहना था कि 55 पासिंग मार्क्स की पॉलिसी पर नज़रसानी करके 40 नंबर्स पर कामयाब करार दिया जाए। उम्मीदवारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एक ही सूबे में मुख्तलिफ भर्ती पॉलिसियाँ मेरिट और इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हार्ड एरिया के नाम पर भर्तियाँ की जा रही हैं, जबकि इन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। यौम शहदाए पुलिस के मौके पर शिकारपुर में वतन पर कुर्बान होने वाले बहादुर पुलिस एहलकारों को शानदार अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया गया। न्यू फौजदारी थाने में शहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी, दुआ और लंगर का एहतमाम किया गया, जहां शिरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ कौम हमेशा याद रखेगी। यौम शहदाए पुलिस के मौके पर शिकारपुर के न्यू फौजदारी थाने में वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीद पुलिस एहलकारों की याद में पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद की गई। न्यू फौजदारी थाने के SHO अख्तर अली अबड़ो की ज़ेरी निगरानी मुनक़्क़िदा तकरीब में शहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी कराई गई, जबकि उनके बुलंद दर्जात, मुल्क की सलामती और पायदार अमन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई हैं। इस मौके पर फी सबीलिल्लाह लंगर और खैरात का भी एहतमाम किया गया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे जेहलम का, जहां शहर और गिरदुनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है और मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश के बायस शहरियों ने सुख का सांस लिया। ताहम बारिश शुरू होते ही शहर की मुख्तलिफ फीडर्स ट्रिप कर गए हैं, जिसके बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। बिजली बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि मुताल्लिका इदारों की जानिब से बहाली का अमल भी जारी है। आरिफवाला के कबूला रोड पर फातिमा जिन्ना पार्क के करीब कार और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के नतीजे में 16 साला नौजवान शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले नौजवान नौमान गुलशन वहाब का रिहायशी है। तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और जख्मी नौजवान को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। रेस्क्यू एहलकारों ने नौमान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ उसे तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। चेन्नईउट में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर तमाम कश्मीरी अवाम से ज़रा यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें कश्मीरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर शाइस्ता जबी, COMC, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजमीन, असातिज़ा, तलबा, वकला, मीडिया नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी और शहरी शरीक हुए हैं। शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीरी परचम उठा रखे थे और कश्मीरी अवाम के हक में भी नारेबाजी की गई है। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने कहा, यौम इस्तेहसाल कश्मीर कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद की याद दिलाता है और पाकिस्तान कश्मीरियों के सियासी, सिफारती, इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने कहा कि कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है। खबर शामिल करेंगे गुजरात से, जहां पर यौम शहदाए पुलिस के मौके पर पुलिस शहदा के लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए कंजाक चौक पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां शमें रोशन की गईं। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल एन कुरैशी, DPO गुजरात अख्तर फारूक, पुलिस अफसरान, सिविल सोसाइटी, बच्चों और मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने इन अजीम शहदाए पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने दौरान ड्यूटी दहशतगर्दों और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ बहादुरी से मुकाबला करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। DPO गुजरात अख्तर फारूक ने कहा कि शहदाए पुलिस ने अवाम के जानो माल, इज्जत व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। जंग में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया, जहां 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर जंग में ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया है, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर बाबर साहिबदीन ने की है। रैली ज़िला काउंसिल से DC ऑफिस तक निकाली गई। इसमें सिविल सोसाइटी, सरकारी अफसरान, अंजुमन ताजिरान, तलबा तालिबात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शुरका ने कश्मीरी अवाम से ज़रा यकजहती के लिए बैनर्स और प्लेक कार्ड उठा रखे थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बाबर साहिबदीन ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के इक़दामात कश्मीरी अवाम के हुकूक और आलमी क़वानीन से मुतालिक ख़दशात का बाइस बने। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर के हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूलों में अपग्रेड करने का फैसला कर लिया। इस इकदाम के बाद तलबा और तालिबात को मैट्रिक के बाद FA और FSC की तालीम के लिए दूसरे इदारों का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो अपने ही स्कूलों में इंटरमीडिएट की तालीम जारी रख सकेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अपग्रेडेशन के अमल के लिए सूबे भर के हाई स्कूलों से तफसीली मालूमात तलब कर ली हैं, जबकि इदारों की सहूलियात और मयार जांचने के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब में इस वक्त तकरीबन 6000 हाई स्कूल मौजूद हैं, जिनमें से 5800 स्कूल मतलूबा डेटा फराहम कर चुके हैं। हुकाम के मुताबिक 795 हाई स्कूलों ने मुनासिब जगह और सहूलियात की दस्तियाबी की बुनियाद पर हायर सेकेंडरी सतह पर अपग्रेडेशन में दिलचस्पी जाहिर की। मयार पर पूरा उतरने वाले स्कूलों को मरहलावार हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दे दिया जाएगा। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ और डिप्टी कमिश्नर लाहौर की क़यादत में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई है, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान और अमला, सिविल सोसाइटी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने शिरकत की है। रैली के शुरका ने कश्मीरी अवाम के हक में नारे बुलंद किए हैं और उनके हक खुदरादियत की हिमायत का इजहार किया। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात पर आलमी ज़मीर को अपना किरदार अदा करना चाहिए। नुमान यूसुफ ने कहा, पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं। ज़िला इंतज़ामिया और अवाम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में उनके शान बशाना है। शहर भर में होने वाली रैलियां मजलूम कश्मीरियों के साथ हमारी वाबस्तगी का इजहार है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने कहा कि 5 अगस्त कश्मीरी हुकूक पर एक गाज़िबाना हमला था।
हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ दाता गंज बख्श के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात गुज़िश्ता रात मुल्क की सलामती, अमनो, तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की दुआओं के साथ इख्तिताम पजीर हो गए हैं। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन और सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर एहसान भट्टा ने अक़ीदतमंदों में लंगर तकसीम किया। महकमा औक़ाफ़ के मुताबिक उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात के दौरान 20 लाख से ज़ायद ज़ायरीन ने मज़ार शरीफ पर हाज़िरी की, सआदत हासिल की, जबकि कौमी, वफाकी और सूबाई सतह की आला शख्सियात ने भी मज़ार पर चादरें पेश की। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि उर्स के मौके पर ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई गई है। मौसम की शिद्दत, मानसून और बारिशों के बावजूद बेहतरीन और शानदार इंतजाम किए गए हैं और अक़ीदतमंदों को पुरसकून, महफूज और बेहतरीन माहौल फराहम किया गया है। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि दाता दरबार के जारी तौसी मंसूबे और दीगर तामीराती सरगर्मियों के बावजूद उर्स की तकरीबात अपने रिवायती शुक्र के मुताबिक मुनक्किद हुई हैं। इस मरतबा गुज़िश्ता साल से बढ़कर इंतजाम किए गए और आइंदा साल इंतजामात में मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी। फैसलाबाद की ज़रा यूनिवर्सिटी में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरी अवाम से ज़ाहिर यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली ने की है, जिसमें असातिज़ा, तलबा, अफसरान, मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शुरका ने कश्मीरी अवाम की हिमायत और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ बैनर्स और प्लेक कार्ड उठा रखे थे, जबकि रैली के दौरान कश्मीर से मुतालिक नारे भी लगाए गए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती, अखलाकी हिमायत जारी रखेगा, क्योंकि आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अरादियत देना जाना चाहिए। रैली के ख़िताम पर पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और मकबूजा कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं। यौम आज़ादी की मुनासबत से सिविल सेक्रेटरीट लाहौर में तारीखी और नादिर दस्तावेज़ात और नवादरात की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तारीखी दस्तावेज़ात और तस्वीर पर मुश्तमिल नुमाइश का इफ्तिताह किया। पंजाब आर्काइव्स म्यूजियम सिविल सेक्रेटरीट में मुनक़दा नुमाइश 14 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसमें मुग़लिया, सिख और बरतानवी अहद से ताल्लुक़ रखने वाले नादिर और नायाब तारीखी दस्तावेज़ात और नवादरात अवाम और मुहक़्क़ीन की दिलचस्पी के लिए पेश किए गए हैं। नुमाइश में तरायु नक़री सिक्के, अशराफिया, मुख्तलिफ अदवार के करंसी, आलात हर्ब और तारीखी मोहरें भी शामिल हैं। पंजाब आर्काइव्स में महफूज लेथोग्राफ पर मबनी नेचर तस्वीर भी नुमाइश का हिस्सा हैं। नुमाइश का एहतमाम पंजाब आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज विंग SNGAD की जानिब से किया गया है। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। मुंतज़मीन के मुताबिक नुमाइश का मकसद तारीख़ी विरसे को अवाम के सामने पेश करना, नई नस्ल को बड़े सग़ीर की तारीख से रुशनास कराना और मुहक़्क़ीन को नातिर तारीख़ी मवाद तक रसाई फराहम करना है। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी से बेटर कॉटन इंस्टीट्यूट के वफ़द ने लाहौर में मुलाकात की है। BCI के वफ़द ने वज़ीर ज़राअत को BCI के तहत चिश्तिया में कपास की आला मयार के पैदावार के हवाले से ब्रीफिंग दी। वफ़द ने बताया कि BCI के तहत हासिल होने वाली कपास पर काश्तकारों को प्रीमियम भी मिल रही है। सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि हुकूमत पंजाब मौसमियाती तब्दीली के पश्त पैदावार में इजाफे के लिए मुतअद्दिद अमली इक़दामात कर रही है। कपास की बरामदी मयार के मुताबिक पैदावार के हुसूल के लिए हुकूमत पंजाब जामे हिकमत अमली पर अमल पैरा है। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि महकमा ज़राअत पंजाब और BCI के बाहमी ताउन से कपास की मयारी पैदावार में मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। ये बाखबर 5 न्यूज़ के साथ।